उनसे कहूँगा कि वो आएँ और साइटेशन ऑफ कुरान के कुछ वर्सेस को साइट करें और हम अल्लाह ताला के पाक नाम से इस वेबिनार की बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सो ऑडियंस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये जो हमारा सेशन होगा ये थोड़ा सा हम इसको इंटरेक्टिव रखें। हमारे साथ जाफरी साहब, आप नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एज अ की नोट थोड़ा सा रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग और जो हम लोगों ने वो डिस्कस अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग थिंग्स जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें थोड़ा सा करिएगा। बहुत सारे लोग जाफरी साहब को मोस्टली जानते होंगे। थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, सर डायरेक्टर CIT हैं और बाकी सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और वो टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेडीज जेंटलमैन। Thank you very much for joining this wonderful webinar today. Actually, we are in a phase of transformation, not only at the normal pace, at a very, very fast pace. Actually, we started from PCs like 286, then we had 386, then we had 486, then there were different varieties of computing. But now, today, we are living in the era of cloud computing. We are living in the era of Internet of Things. Actually, we had things of Internet, but today we have Internet of Things. Today we are living in an era of artificial intelligence, which is now providing us blended learning in which we can project the learning models. So the topic today is Microsoft 365. Microsoft is the, I think, believe the oldest company in the chain of operating systems, and it has a very sound base in Pakistan. I think all of us has been exposed to Microsoft in one way or the other. But Microsoft 365 is offering a complete solution. I must repeat, a complete solution. It has a stack of different initiatives. It is providing a framework in which any organization can reinvent its working strategy. The organization can enter into multiple domains of working simultaneously. Ladies and gentlemen, gone are the days when we used to have databases which used to be pulled or pushed by the software applications. Now we are in the era where devices are generating the information. I think there was a time when we used to go to the homes to have some surveys, to document some information, but now devices are generating information. Let me give you an example. For example, Internet of Things. IoTs are providing information through sensors and through different applications in which information is coming directly to the databases. Now, this fusion of information needs to be transformed in different patterns, in different environments. I think Microsoft 365 is providing that platform. I think we had traditional SAP systems, we had traditional ERP systems in which different jobs were done by the different segments of the organization in a different way. But now, this cloud computing, this Azure computing, this softwares like 365 is giving us the platform in which we can call it a single window solution for the organizations. Now, we have to establish linkages between supply chain, between production, between customer satisfaction, between raw material checking. And now all these initiatives, all these functionalities of an organization need to be understood at three layers. One is the management layer,
then is the techie layers, then is the user layer. But if we have different platforms for different activities, different initiatives, that may become the pain point of the organization. So platforms like Microsoft 365 are offering a solution which is modern in nature. Anybody who gets promoted from the low scale of the organization to the higher scale can easily get benefited. I think the initiatives with which Mr. Abdullah has spelled out right now, in which we are trying to go into blended learning, is based on it. What is a blended learning? What is a hybrid learning? I think gone are the days when we used to go to universities only for getting education. The brick and mortar element of universities are now dying down very slowly. We need to go to the grassroots to train our manpower. And for that, we do not have these fancy buildings or something like this. So, and to my understanding, the blended learning is where in any grassroots level, our graduates or our semi-literate people are sitting and we are teaching them. I don't know how many of you are sitting where in Pakistan or even outside Pakistan, but we are talking very comfortably to each other. Let's think for a minute why our online training programs could not be successful in Pakistan. You know, Coursera once issued a statement, statistics, in which the maximum dropout rate was from Pakistan. The reason is that sometimes we have a electricity problem, sometimes we have a connectivity problem, sometimes we have the understanding of English problems, things like this. We need to bring forward some hybrid models in which physically students are sitting physically, and some teacher like our teacher in this course, they are sitting anywhere in the world, and they are teaching them. But there's a local representative, you call them a technical assistant, who is between the student and the teacher. Nobody can be master everything. We need to teach multiple things. So CIT study centers are establishing a new way of working in which the people at the grassroots will be able to communicate with the experts in Lahore, Karachi, and let's say Islamabad. Not only here, they can communicate with the instructor anywhere. And all this is possible if we have the cloud arrangements, if we have a platform like Microsoft 365 and all these things. So welcoming you all. I end up here and wish you very good luck to the instructors to teach you, and I'll be available for any question. Maybe we can talk in the end also. So with all these welcoming remarks, Mr. Abdullah and our Mr. Altaf and Mr. Saqib, good luck to all of you. Very professionally rewarding training session. Thank you, Mr. Abdullah. Thank you much. Sir, thank you so much for your kind words. It's very great to hear. आपने बड़ी अच्छा insight और एक बड़ा holistic approach के साथ work दिया regarding the importance of cloud in the education era. क्योंकि अक्सर कोविड हमने जो 2 एराज गुजारे हैं, दो साल गुजारे हैं, उसमें जो हमारे पास इस टाइम ई लर्निंग पॉसिबल हो सकी थी वो ड्यू टू द क्लाउड हुई थी. आज का जो सेशन था, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कंडक्टिंग इज द टू डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365. और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्लाउड के एरा के अंदर बेसिकली क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है. सर, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप काइंडली जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपने एक शिफ्ट देखा है टेक्नोलॉजी का फ्रॉम जो हमारे IBM के कंप्यूटर्स थे बैच प्रोसेसिंग से लेके अभी करंट तक, तो आप कैसे देखते हैं आने वाले टाइम में क्लाउड की क्या इम्पोर्टेंस है फॉर स्टार्टअप और फॉर एजुकेशन बोथ? ये सवाल मेरे से अब्दुल्ला सर, मेरे से सवाल ये? जी सर, आपसे सवाल है. ओके फाइन. अच्छा, अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर लिया. मेरा ख्याल है आप सब लोगों की पैदाइश से भी पहले मैंने काम किया था. जब मैंने पहला मास्टर्स किया तो वो था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था. तो मैं वहीं हॉस्टल में रहा करता था लाहौर में, न्यू कैंपस में.
एक दिन मैं शाम को आ रहा था नहर का पुल क्रॉस करके अपने हॉस्टल की तरफ, तो मैंने देखा ऊपर के फ्लोर पे कुछ बड़ी रोशनियां लग रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं लग रही हैं हमारे डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं ऊपर चला गया, वहाँ देखा तो बड़े बड़े डब्बे खुल रहे, चीज़ें फिट हो रही थी। तो मैंने पूछा भाई क्या है, कि जी IBM जो है ना वो 360 मशीन लगा रही है यहाँ पे। ना मैं IBM का पता था, ना मैं 360 का पता था। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे ना आप लोगों को फोटोन पढ़ाई जाएगी। तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो फीस के पैसे नहीं है, तुम फोटोन पैसे लो। कि नहीं जी नहीं, हमने फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे। मुझे मजीद शक हुआ, मैं कहा भाई आप क्यों फ्री पढ़ाएंगे? मगर इसलिए कि अभी बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता तो हम पढ़ाएंगे। खैर किस्सा मौसू उन्होंने कि छोटा सा इम्तहान लिया और उन्होंने हमें दाखिला दे दिया। कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने हमारे से, बल्कि बड़ी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हुई। तो मैंने अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोटोन वहाँ से शुरू की। खैर वो कोर्स हो गया, 6 माह कोर्स था, शाम को होता था, हमने कर लिया। उसके बाद जब मैं जॉब में आया तो मुझे अभी तक याद है, तो हालांकि वो जॉब मेरा वो नहीं था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए जो जॉब था वो डिफरेंट था। तो इदारे ने कहा कि भाई एक नया इदारा बन रहा है जिसको आज आप नादरा कहते हैं, इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी। तो मैं तो एक ग्रेड 17 की जॉब करता था किसी मिनिस्ट्री में। तो मैं कहा, उन्होंने कहा जी आप इधर आना चाहेंगे? मैंने जब उसकी डिटेल देखी तो मेरे बड़े दोस्तों ने मना किया मुझे कि भाई इधर मत जाइए, तो कुछ शांति गड़बड़ इशू करेंगे। मैं कहा नहीं यार, ये कोई नया काम लगता है। तो खैर किस्सा मतलब मैं चला गया। तो देखिए IBM में कैसे फ़ायदा पहुंचा है उस ट्रेनिंग का। तो जब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि भाई ये इस तरह कुछ काम करना है, तो एक गवर्नमेंट ने कानून पास किया है शनाख्ती कार्ड इशू करने का, तो उसमें आप आ गए हैंगे, तो आप इसमें काम को शुरू करें। तो मैंने, उन्होंने पूछा आपके ख्याल में हमें कौन से कंप्यूटर लेना चाहिए? मैंने कहा IBM लेना चाहिए हमें। तो मुझे लगा कि जो IBM ने मेरे इन्वेस्टमेंट की थी वो उनको मिल गई उस दिन ना। खैर वो एक फिर लंबी बात है, फिर उन्होंने हमें लंदन भेज दिया, वहाँ हमने ट्रेनिंग की, जो भी वापस आए। तो मुझे अभी तक याद है कि उससे पहले ना पंच कार्ड होते थे मशीनों के ऊपर ना, बकायदा कार्ड पंच होते थे 80 कैरेक्टर कॉलम के ऊपर ना। तो जब हमने IBM से, उसमें एग्जैक्टली याद है 3741 थी, उसकी एक CRT स्क्रीन थी जो आपके सेल फोन से भी छोटी स्क्रीन थी उसकी। तो जब मैंने फर्स्ट डे उसका नाम, अपना नाम टाइप किया AMMAR, तो मैं इतना खुश हुआ कि नाउ आई कैन सी इन द स्क्रीन कि मेरा नाम नजर आ रहा है वहाँ पे ना। अच्छा एक तो ये वाक़या सुनाना ज़रूरी था। एक और वाक़या सुनाऊँगा आपको। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था किसी और महकमे में, बाद में कहीं और चला गया। तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, कहने लगा भाई कोई हमें पैसे-वैसे मिलने हैं तो नए कंप्यूटर लेने हैं तो प्रपोज़ल लेकर आओ। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उस ज़माने में हमारे पास उस इदारे के अंदर 386 कंप्यूटर्स थे मुझे याद है। तो मैंने एक प्रपोज़ल बनाई कि जी हमें ना 486 लेने चाहिए, और ज़रा लंबा चौड़ा खर्चा पेश कर दिया हमने। तो वो मेरे बॉस, ही वाज़ अ पुलिस ऑफिसर, उसने मुझे बुला लिया, कहता है ये मुझे समझाओ ये क्या चीज़ है। तो अब आप देखिए वो कितना इंटेलिजेंट आदमी था, अल्लाह उसे गनी की रहमत करे, वो उसका इंतकाल हो गया। तो वो मुझे कहने लगा कि समझाओ मुझे, तुम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, क्या चक्कर है ये? मैं कहा जी पहले आया था 286, 286। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, वो लिख रहा है अपने कागज़ के ऊपर ना। फिर मैं कहा आया 386। तो कहने लगा इसके बाद क्या आएगा? मैंने कहा इसके बाद 486 जो मैं आपसे कह रहा हूँ, 486। कहते हैं इसके बाद क्या आएगा? मैं कहा जी 586 आएगा। अब आप देखिए कितने डेरिंग आदमी था वो, तो लिखता रहा। कहता है ये इसमें फ़र्क क्या है? मैं कहा जी पहला ज़रा कमज़ोर था, वो तगड़ा हुआ, मेमोरी ज़्यादा आ गई है, फैसला वो अच्छा कर सकता है, ये वो। अब आप देखें उसने लिखा 286, 386, 486, 586, 686, 786। अच्छा वो था उकाड़े गए, टिपिकल पंजाबी। कहना मुंडिया तू कोई दिन आएगा, तू कह अल्लाह में आ गया है, 786 आ गया है। तो मैं सोचता हूँ कि उस शख्स को क्या विजन था उसका। बाकी तो लगता है अल्लाह भी आ गया है कंप्यूटर के अंदर ना, कि वो प्रिडिक्शंस भी कर रहा है। तो ये अब्दुल्ला साहब ने सवाल किया, मेरा सफ़र शुरू हुआ IBM 360 से, होता होता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई प्लस 50 ईयर्स का सफ़र है मेरा। तो ये मैंने सब चीज़ें अपने सामने ग्रो होती देखी है। तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब ये था। लेकिन अब जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो ये है कि जो चीज़ मैंने देखी ना पिछले 50 सालों के अंदर कंप्यूटिंग की दुनिया में, आसानी से बताऊंगा कि जो तब्दीली मैंने 1 साल में देखी उस ज़माने में, वो मुझे अब 1 हफ्ते में नज़र आती है। 1 साल 1 हफ्ते में गुजर गया है। लेकिन जो अब मेरी आंखें देख रही हैं वो इतनी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है
कि शायद अगर हमने अक्ल नहीं पकड़ी तो कुछ ऐसे के बाद हम इसको समझना ही बंद कर दें। मुझे बताएं कि एक मतलब है स्पीशी में या हमारे में क्या फ़र्क है? हम सिर्फ सोच सकते हैं, देख सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, या कोई और स्पीशी है वो फैसला नहीं कर सकती। तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि जिस स्लो स्पीड से हम चीज़ें समझ रहे हैं, तो ये ना हो ये रेस इतनी आगे चली जाए क्लाउड में या 5G में या AI में या IoT में, या जो अब नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ट्रेंड्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स आ रहे हैं। तो चले अभी तो हम बात समझ रहे हैं, हम बोल भी सकते हैं जैसे आज बोल रहे हैं, और गोरा गुजरा दूर नहीं गया हमारे से। लेकिन ये आप सब मिलके फिक्र करें कि गोरा ज़्यादा भाग के आगे चला गया, पीछे रह गए, तो फिर अब्दुल्ला कहेगा जी बोलो आगे। मैं को यार अब्दुल्ला गाली समझ आ रही मेरे मेरी समझ नहीं आ रही। तो हमें सबको मिलके भागना चाहिए तेज़ी के साथ। अभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, मैं इतना बता दूंगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं पूरा दिन नश में गुजार के आया हूँगा। हम एक बहुत बड़ा अब्दुल्ला साहब को पता है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम लिंक कर रहे हैं SDGs को IoT के साथ, और इतनी अच्छी केस स्टडीज़ बन रही हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जॉइन हैंड टुगेदर, जिसको जो कुछ आता है। देखिए मेरे पास ज़िंदगी में स्वयं तजर्बे कुछ नहीं है इस वक्त। आप मुझे कहीं खड़ा कर दें, मैं तजर्बे की रोशनी में बता दूंगा अभी ये काम ऐसा है। और ये टीमें काम करती हैं, किसी के पास नॉलेज होता है, किसी के पास तजर्बा होता है, किसी के पास जज्बा होता है, सब मिलके। बस अब्दुल्ला तुम्हारे सवाल का यही जवाब था। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया। आपकी बात सुनने का दिल करता है कि बंदा बस सुनता रहे, जो ख़ास तौर पे आपकी स्टोरीज़ हैं इन पर्सन और मिलने का वो एक मैं, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग हैं, मुलाकात आपसे होती रहती है यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा बताना चलूँ कि स्किल शेयर आप अभी जो आप कंपनी का लोगो देख रहे हैं, और सर CIT हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इस तरह के सेशन और आपकी गाइडेंस के अंदर इस तरह के इवेंट्स आते रहेंगे। और सर गाय बगैर सर हम आपकी गाइडेंस और जो है ना आपकी एक्सपीरियंस जो है ना वो फ़ायदा लेते रहेंगे। आपने जो बात की है अभी रिगार्डिंग द रैपिड ग्रोथ, तो आज का जो सेशन है ये उसी रैपिड ग्रोथ और उसी चेंज को सामने रखते हुए वही सिलेक्टेड द माइक्रोसॉफ्ट 365। मेरी पार्टिसिपेंट से गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी, अगर आप कहते हो तो आई कैन यूज अदर लैंग्वेज, कि आप अपना माइक तो ऑफ रखें, बट कैमरा अगर आप लोग ऑन कर लें, अगर आपके पास बैंडविड्थ का इशू नहीं है, तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आई फील कि हाँ यार मैं कंप्यूटर की स्क्रीन से बात नहीं कर रहा, मेरे सामने वाकई में लोग बैठे हैं। और थोड़ा-सा आपके लिए भी एक थोड़ा-सा एडवांटेज हो जाता है कि कंघी-झुकी करके ज़रा थोड़ा-सा आप भी अटेंटिव होके बैठेंगे। क्योंकि जो लाइव वेबिनार होते हैं इसके अंदर थोड़ा-सा ये होता है कि हम लोग एक वो लेज़ीनेस का और थोड़ा-सा लेथार्जिक एटीट्यूड आ जाता है, और थोड़ा-सा हमारे पास और ड्रॉज़ीनेस की कैफ़ियत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अपनी चेयर भी चेंज कर ली है। साकिब भाई थैंक यू सो मच जी, आपने कैमरा ऑन कर लिया और आप कैमरा लेके आ गए, तो आप इस लिहाज से विनर हुए। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स तकरीबन हमारे साथ अभी 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, 15-16 प्लस हैं लोग, 20 के करीब लोग हैं। मैं सारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा तो कंघी शंघी करके आएँ और अपने कैमरा शैमरास ऑन कर लें। आप अगर टीम्स मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे टीम यूज़र हैं, तो आप लोग यू कैन चेंज द व्यू एज़ वेल। आपको गैलरी के अंदर बड़े अच्छे और बड़े अमेजिंग किस्म के जो है ना वो व्यूज़ मिलेंगे। आज की सेशन का थोड़ा-सा हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो हमारे मॉडरेटर हैं उनसे कहूँगा कि स्लाइड्स का जो एजेंडा है काइंडली वो डिस्प्ले कर दें अगर स्लाइड्स के अंदर, तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा पार्टिसिपेंट। जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, एजेंडा हमारे सामने है। हमारे साथ जाफ़री साहब थे और उन्होंने बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी का क्या बूम आ रहा है फ्रॉम देयर IBM 360 टू माइक्रोसॉफ्ट 360, जो कि बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर था, वहाँ से लेके अभी हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। तो क्लाउड एक सर एक स्टोरी सुनाते होते हैं, मैं वही बात यहाँ पे कोट करूँगा कि बेसिकली हुआ ये कि एक दफ़ा एक आदमी जो है वो शहर गया और वहाँ से एक हाथी को ले आया। ठीक है, गाँव में था, तो वो शहर से हाथी को ले आया और उसने हाथी को ला के ना एक कमरे में बंद कर दिया। अब गाँव वाले लोग बड़े जो है ना वो उनको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यार हाथी आया, पता नहीं हाथी दिखता कैसे है। तो हर बंदे को कहा गया कि ठीक है भाई तुम उस कमरे के अंदर जाओ और तुम हाथी को जो है ना वो टटोल के देख सकते हो, लाइट ऑन करने की इजाज़त नहीं है। तो वो बस टटोल के देखता था कि जो है वो हाथी कैसा है। तो किसी के हाथ में उसकी दुम लगी, किसी के हाथ में उसके टाँगे लगी, तो किसी के हाथ में उसकी जो सूंड वाला ऐसा था वो लगा। तो हर बंदे ने उस हाथी को अपने तरीके से डिफाइन किया कि हाथी जो है वो इस तरह का दिखता है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही एलिमेंट क्लाउड के साथ भी हुआ। आप जिस बंदे से बात करोगे, जो जिस प्रोफेशन में काम कर रहा है, वो क्लाउड को उसी पैटर्न में डिफाइन करेगा।
आज का सेशन कंडक्ट करने का बेसिक पर्पस ये है कि हम थोड़ा सा ज़रा टेक्निकली और थोड़ा सा ज़रा स्क्रैच लेवल के ऊपर ज़रा इन डेप्थ जाके बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें कि क्लाउड एक्चुअल में है क्या, उनके मॉडल्स की डेफिनेशन, और अब आने वाले टाइम में एजुकेशन में, स्टार्टअप्स में और बिजनेस में वाई व्हाट इज़ द फोर साइड कि हम क्लाउड पे अगर मूव ना किए तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, हम लोग इस जो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है इसको हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। मेरी मेंबर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सेशन आता है तो यू कैन रेज योर हैंड। आप टीम्स के जो बॉटम के ऊपर इफ यू जस्ट स्क्रॉल ऑन योर स्क्रीन तो आपको एक हाथ का निशान नज़र आएगा, आप उस हाथ के निशान पे बटन दबाइएगा तो भी कॉल कर सकता हूँ। इवन यू कैन आपको अनम्यूट करके भी आप क्वेश्चन लिख कर इंटरप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आई वांट के हम ये सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी, प्रिंसिपल असूल मोहब्बत क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के। मैं जैसे बता चुका हूँ मेरा भी ताल्लुक कंप्यूटर साइंस की डोमेन से है, और मैं भी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की एरा के अंदर थोड़ा सा काम कर रहा था। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारी नेक्स्ट टाइप क्या कहती है क्लाउड के बारे में। जी नेक्स्ट टाइप करिएगा प्लीज़। हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हुए अच्छा जी टॉपिक्स हमारे जो आज हम जिसके बात करेंगे दैट इज डिस्क्राइबिंग द क्लाउड, जो है बात अभी कर चुका था। एक्सप्लेनेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो उसका पर्पस क्या है। 365 इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है, दैट इज देयर फॉर अपलिफ्टिंग एंड कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए और टीम पर्पस के लिए, दैट इज अ सर्विस बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो कोर गोल है 365 का वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर है, टीम बिल्डिंग के अंदर है और कम्युनिकेशन के अंदर है। नेक्स्ट करिएगा। थोड़ा सा स्लाइड्स में ले है। बेसिकली इसके अंदर आप एक देख रहे होंगे कि द वर्ड इज इन अ मॉडर्न वर्कफोर्स। बेसिकली जो हमारा करंट 21st सेंचुरी का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एजिलिटी, रैपिड ग्रोथ और फास्ट कम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप, किसी भी कंपनी, वो एजुकेशन सेक्टर है, वो अकेडमिया है या वो कोई भी सेक्टर है, उसकी एक कोर नीड है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो 365 का जो क्लाउड है दैट हैव्स दोज। अच्छा अब क्लाउड क्लाउड मैं 3-4 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, तो व्हाट इज़ बेसिकली एक्चुअल द क्लाउड। सो जो हमारी जो डेफिनेशन है by the Microsoft generic definition है that is well settled, वो ये है कि cloud computing is a delivery of computational services। बिफोर गोइंग दिस थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना एक यू कैन से इसकी एग्जांपल मैं आपको एक हमारी जो डे टू डे लाइफ है वहाँ से भी मैं इसकी एग्जांपल कोट करूँगा फ्यूचर। लेट मी रीड द स्लाइड फर्स्ट ताकि थोड़ा सा हम इसकी पेस डेवलप करने के हमारे जो कीवर्ड्स हैं हम उनको अंडरस्टैंड करने में आसान हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी ऑफ services, storage, databases, networking, software, analytics, intelligence, and more। मैं अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू हम कंप्यूटेशनल सर्विसेज को रेंट आउट कर सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे मेरे पास अगर एक जगह है, अगर हम उसकी एग्जांपल अपनी प्रॉपर्टी और लैंड से इसको समझने में बड़ा आसानी होगी कि मेरे पास अगर एक प्लॉट है तो मैं अपने उस प्लॉट को रेंट आउट कर सकता हूँ और वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। वहाँ पे कोई स्कूल, पार्किंग, कोई जिम, कोई प्लाजा, कोई शॉपिंग मॉल, एनीथिंग कैन बी डेवलप। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास मेजर क्या है, स्टोरेज है। आई वांट टू स्टोर डेटा। एक स्टार्टअप है, एक कंपनी है, कोई आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज नीड्स, दे हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग नीड्स लाइक कंप्यूटर का कनेक्शंस। सॉफ्टवेयर से मुराद यहाँ पे डिफरेंट की एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे जॉब्स के लिए उसको हेल्प आउट करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जब मैं इनको रेंटल मॉडल में ले आऊँगा, मैं इसको एक ऐसा मॉडल डेवलप कर लूँगा जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को मैं सेल कर सकूँ या रेंट कर सकूँ या रेंट दे सकूँ या मैं किसी को रेंट पे दे सकूँ। इस मॉडल को, इस फिनोमेना को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो उसकी डिलीवरेबल्स होते हैं उसमें कंप्यूटर सर्विस हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज, सर्विसेज
like core है, that is a storage services. स्टोरेज सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप लोग न्यू हो, अगर आप लोगों को पहले इंटरेक्शन नहीं है क्लाउड के साथ, तो आप लोगों ने अपने जीमेल या गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। तो ये जितने भी नाम आप देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन है जो कि एज अ स्टोरेज आपको प्रोवाइड की जाती है टू स्टोर योर पर्सनल डेटा ओवर अ कंप्यूटर, जो कि किसी एक दुनिया के कोने में आप पड़ा हुआ है और आपके पास उसकी सर्विस ओवर नेटवर्क अवेलेबल है। आपने उसको मैनेज नहीं करना, आपने उसकी स्टोरेज को नहीं देखना, आपने उसके बैकअप्स को नहीं देखना, बट यू आर जस्ट यूजिंग द सर्विसेज। आप अपना डेटा उस पर अपलोड करते हैं और वहाँ से डेटा अपना ले लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली द क्लाउड। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने भी जिक्र किया कि वी आर यूजिंग गूगल ड्राइव। जब तक हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है, गूगल ड्राइव की मैंने बात की, तो आप कहेंगे जी गूगल ड्राइव तो फ्री है, उसमें तो मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो एक जब हम लोग स्टार्ट स्टडी द क्लाउड, तो उस टाइम मेरे टीचर ने एक बड़ा फेमस कोट जो है ना वो कोट किया था कि देयर इज़ नो फ्री लंच, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। सो जब आप जो फ्री सर्विसेज के ऊपर जब आप कोई पे नहीं कर रहे होते हो, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू सेल। तो वो मार्केटिंग पर्पज, वो स्ट्रेटजी अलग से हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी तमाम बातों में कोई भी बात अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मैं मॉडरेटर से कहूँगा काइंडली अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देयर सेल्फ। मेरे ख्याल में आप लोगों के पास परमिशन है टू अनम्यूट करने की, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप इंटरप्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिक इस सेशन का कंडक्ट करने का रीज़न यही है कि आप लोगों को क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग आज के सेशन के बाद, अगर आप नए हो तो अच्छे तरीके से हो जाए, और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं एंड यू वांट टू ऐड समथिंग, तो आप वो ऐड भी कर सकते हैं। यू जस्ट रेज योर हैंड और उसके बाद मॉडरेटर आपको अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन वेरियस आईटी जो हमारे पास फंडिंग मॉडल होते हैं। अच्छा, फंडिंग मॉडल का यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली मेरा जो आज का सेशन, when I thinking about planning this, so I think about the companies, जो स्टार्टअप्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग emerging जो मेनली स्टार्टअप कह सकते हैं, वो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की है, आने वाले जो अभी करंटली भी और आने वाले कुछ सालों में भी जितनी भी कंपनीज हुआ करेंगी, दोज कंपनीज आर आईटी कंपनीज, और वो कंपनीज जो है वो सर्विसेज दिया करेंगी डिफरेंट फील्ड के। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट मेट द गाय और मैंने उससे पूछा जी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरी कंपनी में मेडिकल बिलिंग। वहाँ पे एक और साथ खड़े हुए थे, उनसे पूछा, था जी मेरी भी आईटी कंपनी है लेकिन मैं तो एजुकेशन के अंदर काम करता हूँ। तो जो सर्विस लाइन चेंज हो सकती है, बट हमारा जो कोर होगा वो आईटी होगा। पर जब हम बात करते हैं एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, जब मैंने एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, मैंने एक स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहला जो मेरे पास ऑप्शन आएगा वो वहाँ पे आएगा, यार पैसे कितने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, मुझे पैसे लगाने, मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितने और मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितने। थोड़ी सी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये ज़रा फाइनेंशियल हैं, कॉप और कैप, ऑप और कैप। इनके जो थोड़े से, अगर मैं एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बात करूं, तो इनकी जो इन एक्सपेंडिचर का फ़र्क पड़ता है व्हेन यू शो योर लायबिलिटी एंड व्हेन यू आर गोइंग। अगर आप स्टार्टअप हैं, आप में से कोई भी मोस्टली आप स्टार्टअप होगा, के लिए ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि कॉप एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक आईटी को यूज क्लाउड के ऊपर जाने का रीज़न क्या है, तो क्लाउड के ऊपर जाने का जो मेजर रीज़न है वो हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उसका कट ऑफ है। अगर मैं एक छोटा कंपनी हूँ, मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैं एक ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हूँ, इवन कि अगर मैं एक स्टैब्लिश कंपनी भी हूँ जिसे हम एसएमईज कहते हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हूँ, तब भी मुझे क्लाउड बेनिफिट देगा तब जब मुझे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि अगर हम घर की इकोनॉमी की बात भी करें, अगर हम एक मैं इसको डोमेस्टिक एग्जांपल से आपको बताऊं, तो अगर एक घर के अंदर भी मुझे जो कैपिटल निकालना, या जैसे अपनी जुबान में कहते हैं ना, यकमुश्त पैसा निकालना, इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये चीज़ एक कंपनी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो जब हम क्लाउड की सर्विस पे चले जाएंगे, हम एक ऐसा मॉडल ऑप्ट कर लेंगे जहाँ पे हम कंप्यूटेशनल सर्विस को रेंट आउट कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्लाउड हेल्प अस टू मैनेज आवर ऑपरेशनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आई नीड स्टोरेज सर्विसेज, सो आई कैन रेंट आउट, और मुझे वो जो
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कॉस्ट लगानी है, मुझे कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए रैक्स बनाने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए जो उसकी पावर को मैनेज करेगा, जो डिज़ास्टर के को मैनेज करेगा, जो बैकअप्स को मैनेज करेगा, तो मुझे वो सारा हैसल मेरे पे नहीं रहेगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा इस स्लाइड को, अगर आप लोगों का दोबारा से मेनली क्वेश्चन है जस्ट रेज योर हैंड, तो मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आंसर करना चाहूँगा। दैट विल बी मोर यू कैन से मोटिवेटेड फॉर मी कि मैं आपके रेलिवेंट क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। इसमें हम थोड़ा सा स्लाइड्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एक चीज़ आती है, हमने लास्ट देखा था फाइनेंशियल मॉडल्स को। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्लाउड के अब जब हम क्लाउड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अपने मॉडल्स भी हैं, जैसे कि पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइपर क्लाउड है। अब इसकी एग्जांपल मैं थोड़ा सा पहले जो मैंने एक स्टोरी स्टार्ट की थी रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी रेंटल की, तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक जो मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, मैं उस ज़मीन के टुकड़े को रेंट आउट कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से अपना घर भी रेंट आउट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं अपने घर के कोई सामान को भी किसी को दे सकता हूँ, जैसे हम गाड़ी रेंट पे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रा आप अपने माइंड में रखिएगा। मैंने अब उसमें एक चीज़ ऐड कर दी है, जहाँ मैं ज़मीन रेंट आउट कर सकता था वहाँ मैंने घर को भी ऐड कर दिया और मैंने गाड़ी को भी कर दिया। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें मैं रेंट आउट कर सकता हूँ। तो अगर एक कंपनी है, एक लोग हैं जिसको अगर उसने गाड़ी परचेज करनी है तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। ठीक है। गाड़ी परचेज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम अपने उस हसल से कम होने के लिए हम एक ड्राइवर और एक गाड़ी को हायर कर लेते हैं, और उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो हमारे पास कम हो जाती है, बट हम ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करके हम अपने जो ऑपरेशन हैं उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सेम थिंग अप्लाई व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटिंग। जब हम कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो यही फिनोमेना वहाँ पे अप्लाई होगा। होपफुली आपको ये जो द फिनोमेना ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट है, होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इसकी हो चुकी है। आगे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। ये क्या चीज़ें हैं? नाम से ज़ाहिर है पब्लिक वो चीज़ जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। प्राइवेट से मुराद जो कि मेरा अपना है, मेरा ज़ाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसके मीनिंग के ऊपर जाएंगे ना, तो इसके वर्ड मीनिंग है। तो वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड। यहाँ पे पब्लिक से मुराद वो सर्विसेज हैं। इन द पब्लिक क्लाउड मॉडल यू हैव नो लुक हार्डवेयर टू मैनेज और कीप अप टू डेट। मतलब ये हुआ कि मेरे पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने जो वो कैपिटल कॉस्ट थी वो लगा के कुछ हार्डवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ सर्विसेज मेरे लिए अवेलेबल कर दी हैं, और मैं उनको रेंटल मॉडल पे जस्ट जाके शेयर कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट है, जैसा कि गूगल है, जैसा कि AWS है। तो ये AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड रेस्ट ऑफ सेल्स फोर्स भी क्लाउड के ऊपर मूव करके हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज ने जो कैपिटल कॉस्ट थी उसको लगाया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों को हायर किया, डिफरेंट रीजन पे अपने डेटा सेंटर्स बनाए, और उसके बाद नाउ व्हाट कैन आई डू, आई एम जस्ट गो पे एंड आई एम यूजिंग दो सर्विसेज फॉर माय बिजनेस प्रॉफिट, फॉर माय ऑपरेशंस। तो ये हमारे पास फिनोमेना आ गया पब्लिक क्राउड। तो अगर आप एज अ रिसर्चर बात करें, सो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो मोस्टली रिसर्च एरिया फॉल इन द प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक एज वेल। हम उसकी मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और उसके एल्गोरिथम और उसके डॉकर कंटेंट डिफरेंट, उसकी फिर एक आगे आपकी थोड़ी सी यू कैन से डीप डेव जब हम करेंगे तो हम उसके अंदर को देखेंगे। तो आपका पब्लिक क्राउड सिंपल फिनोमेना ये है कि दे आर शेयर्ड बेसिस के ऊपर, मतलब लाइक आई जस्ट गो एंड सम कंपनी, और मैं उसके पास जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ भाई यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर और आप मेरे से, मैं उसको परचेज करता हूँ। बट अगर एक कोई बैंकिंग सेक्टर है, कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसका अपना प्रीवियस पर्सनल डेटा है, ठीक है, अगर इफ ही वांट टू डेवलप देयर ऑन क्लाउड, तो वो क्या होगा, वो कंपनी अपना लोकली जो क्लाउड इंस्टॉल करेगी, दैट इज देयर प्राइवेट क्लाउड। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं जरा पानी पी
जी थैंक यू जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे पब्लिक क्लाउड की, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि हमारे पास पब्लिक क्लाउड से मुराद जो हमारे पास इन शॉर्ट ये कि जो हमारे पास कैपिटल जो फंड था ना वो किसी और कंपनी ने स्पेंड किया और वी आर जस्ट गोइंग टू देयर गेटिंग देयर रेंटल थी। और उसके हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं कि हमारे पास शेयर्ड पब्लिक क्लाउड है, हमारे पास डेडिकेटेड पब्लिक क्लाउड है। सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि शेयर्ड से मुराद लाइक something that is you can say managed by the company but that is distributed different stakeholders, उसके stakeholders different हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉप प्राइवेट क्लाउड की एग्जांपल है उसकी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं जैसे हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है। एक बैंकिंग सेक्टर अपना एक क्लाउड स्टैब्लिश करता है और वो उसके ही विद इन क्लाउड एनवायरनमेंट देयर ऑन डेटा सेंटर्स एंड प्रोवाइड सेल्फ सर्विस एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज टू यूज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। मोस्टली आप सारे अगर किसी यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी आपका इंस्टीट्यूट अगर वो खुद से अपना डेटा अपने रिसोर्सेज अपनी कंप्यूटिंग अपने बैकअप्स को मैनेज कर रहा है तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर हमारे पास जो 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 कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं या हमारे पास वी नीड मोर यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे जो जो काम है वो ग्लोबली एक्सपेंड करता है, तो देन वी कैन गो अदर मॉडल ऑफ हाइब्रिड। नाम से ज़ाहिर है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। लाइक मैं अपना कुछ जो डेटा है लाइक फॉर एग्जांपल आई सेड कि मेरी जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं या जो ऐसा डेटा आई डोंट वांट टू शेयर विद ग्लोबल थिंग, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने उस डेटा को शेयर करता हूँ। कुछ डेटा मैं अपने प्रिमिसेस में रखता हूँ और कुछ डेटा जो है वो मैं अपने क्लाउड के ऊपर ग्लोबली शेयर करके आई कैन शेयर विद माय अदर यू कैन से मेंबर्स और जो हमारे ऑपरेशंस का स्टाफ है उसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक सो साकिब भाई अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो होपफुली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते होंगे। आई रिपीटली से कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू engage yourself. I don't want to broadcast the knowledge to you guys कि मैं जस्ट आके अपनी बात ब्रॉडकास्ट करूँ। यू कैन कम अप विद योर आइडिया और अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें सो यू कैन आस्क any sort of question related to the topic. नेक्स्ट हमारे पास हमने जो बात की थी हम दोबारा से अपनी उसी स्टोरी पे जाते हैं। मैंने आपसे कहा था जी कि हम एक घर को रेंट आउट कर सकते हैं, हम एक प्लॉट एक ज़मीन का टुकड़े को रेंट आउट कर सकते हैं और हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं उस घर के अंदर फर्नीचर लगा दूँ। जैसे आप लोगों ने कोवर्किंग मॉडल कोवर्किंग स्पेसेस का इन्वायरमेंट आपने देखा होगा कि जनाब यहाँ पे क्या होता है कि एक साहब होते हैं वो एक प्लाजा दे रेंटेड आउट, उसके अंदर उन्होंने फर्नीचर लगाया, कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, कैंटीन बनाई और दे हायर सम स्टाफ फॉर ऑपरेशंस, पावर बैकअप सेटअप किया एंड नाउ दे आर रेंटिंग द ऑफिस स्पेस ऑन सम यू कैन से स्क्वायर फीट मॉडल के ऊपर। अगर आपकी 4 लोगों की कंपनी है तो आप क्या करोगे, आप जाके 4 लोगों के लिए वहाँ पे अपनी एक स्पेस रेंट आउट कर लोगे। अब आपको 4 लोगों से ज़्यादा जाना है, आपके 2 लोग और हायर हो गए हैं, अब आपकी 10 लोगों की कंपनी होगी या आपके 6 लोग और हायर हो जाते हैं, 10 लोगों की कंपनी होगी है। तो आप क्या करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बाय न्यू चेयर्स, यू आर नॉट गोइंग टू बाय न्यू you can say office logistics, office things. You just go and pay and you can rent out more 4 or 5 seats. सो यही मॉडल जब हम इसी कंप्यूटिंग मॉडल को जब हम रिलेट करेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर, जब हम बात करेंगे कंप्यूटिंग की, जब हम बात करेंगे अपने डेटा स्टोरेज की, जब हम बात करेंगे अपने नेटवर्क मैनेजमेंट की, जब हम बात करेंगे अपने बैकअप्स की, जब बात होगी हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की, तो क्लाउड की अम्ब्रेला के अंदर हुई है। यहाँ पे 3 मॉडल्स हैं बट यू कैन से हुई है 5 to 6 मॉडल्स, जिसमें कुछ मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट आई वर्बली एक्सप्लेन दोज मॉडल एज वेल। तो हमारे पास पहला जो मॉडल यहाँ पे दिया जाता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दीज 3 मॉडल आर यू कैन से एक स्लाइड के लेफ्ट साइड के ऊपर यू कैन सी के अगर हमारे पास अगर मैं आपको यहाँ पे दिस स्लाइड अलाउ मी टू राइट, मेरे ख्याल में आई थिंक सो अगर टाइम कांस्टेंट मैं थोड़ा सा इसको क्विकली लेके चलता हूँ क्योंकि हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी हैं और वो वेटिंग पे हैं। सो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी राइट साइड पे देखो तो यू सी यू कैन सी आ टेबल और उस टेबल के अंदर हमारे पास नेटवर्किंग स्टोरेज और सर्वर, तो ये हमारे पास बेसिकली नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है दैट इज़ और हमारे पास ऊपर वर्चुअलाइजेशन है।
कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक प्लॉट चाहिए, मुझे एक फाउंडेशन चाहिए। तो अगर मैं उस फाउंडेशन को रेंट आउट करता हूँ, उस फाउंडेशन को किसी कंपनी से बारो करता हूँ, लाइक आई वांट कि मुझे वर्चुअलाइजेशन का एक एनवायरनमेंट चाहिए, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अपना खुद से इंस्टॉल करना है, उस पर सर्विसेज, उसके जो स्टोरेज की बैकअप्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी कंपनी है जिससे मैं वो रेंट आउट कर रहा हूँ वो मैनेज करे, दैट इज़ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लो जैसे मैं किसी जगह पे जाके जस्ट एक रॉ बिल्डिंग रेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक। जैसे मैंने रॉ बिल्डिंग एक रेंट आउट कर ली, बट उस बिल्डिंग का जो जो सिक्योरिटी है, उस बिल्डिंग से रिलेटेड उसके जो पाथवेज हैं, वहाँ पे जो पानी का कनेक्शन हुआ है, वो सारे का सारा जो मैनेजमेंट है वो उस बिल्डिंग के, उस जगह के ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के ऊपर। लेट्स सपोज एक और साहब है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्डिंग नहीं, उसके ऊपर एक उन्होंने एक घर बनाया, एक प्लाजा बनाया, एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और उन्होंने वो रेंट आउट कर दिया। सेम फॉर एग्जांपल कि अगर उसके ऊपर मेरे आई गेट सम एनवायरनमेंट फॉर बाइंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग एंड रनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। इससे मुराद क्या है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज दीज थिंग। मैंने इन चीज़ों को मैनेज नहीं करना, मेरा सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस होगा वो एप्लीकेशन और डेटा के ऊपर होगा। जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं दैट इज़ मैनेज बाय द कंपनी जो कि मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है एज अ सर्विस। जैसे हम एज्योर की एग्जांपल, एज्योर यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट की जो दोनों प्लेटफॉर्म है, ये कहीं ना कहीं इनका जो, अगर मैं इसकी एक आई डोंट हैव द लेवरेज टू ड्रॉ द थिंग ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, तो उसके अंदर ये होता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही होती हैं। आने वाली स्लाइड्स में जो नेक्स्ट साकिब भाई हैं या अब्दुल्ला हैं, वो थोड़ा सा इस चीज़ों के ऊपर मैं आपको कहूँगा ज़रा डिटेल में भी एक्सप्लेन दे दें। ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट आई जस्ट टेक नेक्स्ट थिंग। उसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विस है सेम, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं 365 क्लाउड, ये सॉफ्टवेयर सर्विस है। अब इसके अंदर दैट इज़ अ रेडी टू गो मॉडल, लाइक आई डोंट हैव बॉदर अबाउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग, हाउ दे गेट द बैकअप्स कैसे लिए जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन उसको मैनेज करेगा। आई जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन एंड माई डेटा। आई नीड, मेरे पास मेरा डेटा होना चाहिए और मुझे पता हो कि मैंने किस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, मैंने वर्ड को यूज़ करना है, आई एम गोइंग टू चैट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम यू कैन से प्रेजेंटेशन। so that is basically the thing that change you can say the dimensions of business and dimension of academia as well. तो इस चीज़ ने, इस एरा ने या इस सर्विस ने बिजनेस ट्रेड को बहुत ज़्यादा यू कैन से अपलिफ्ट किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक रैपिड ग्रोथ लेके आया। सर नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज़। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का अभी जो एज्योर का एक और ऑप्शन है दैट इज़ एआई एज अ सर्विस। सो माइक्रोसॉफ्ट हमें अभी जो एज्योर का जो लेटेस्ट है और नेटवर्क एज अ सर्विस एज वेल, लाइक आई एम गोइंग टू रेंट आउट सम नेटवर्क सर्विस फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज वेल। और मैं इसके अलावा कुछ एआई के, जिसमें अगर मैंने क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, अगर अगर आप लोगों का मशीन लर्निंग का या एआई का बैकग्राउंड है, यू बेटर नोज, तो उसके अंदर क्या होता है कि मुझे आई डोंट बॉदर कि उसके बैक एंड पे कौन सा एल्गोरिथम या किस पे कैसे क्या चीज़ चल रही है। देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म पावर एप्स, तो पावर ऐप को यूज़ करके आई कैन गो एंड रेंट आउट माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्विस के अंदर आई कैन गो एंड परफॉर्म ऑल माई यू कैन से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, और मैं उसके अंदर अपनी मशीन को ट्यून करवा सकता हूँ, मैं उसको ट्रेन मॉडल बना सकता हूँ। आई जस्ट नीड डेटा, ट्रेनिंग मॉडल्स के सेट्स बने हुए हैं। अगर इफ वी हैव अ टाइम तो हम आई विल गिव यू द स्नैक पिक डेमो ऑफ दिस एज वेल। जी हमारे पास नेक्स्ट आई थिंक सो या लास्ट पार्ट होगा दैट इज़ अल्टरनेटिव। मैंने अपनी स्लाइड के दरमियान में इस बात के ऊपर जिक्र किया भी था कि हमारे पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि अपने जो क्लाउड सर्विस हैं उसको ऑफर करती हैं, जिसमें एक अमेज़ॉन ग्लोबली वाइडली एक्सेप्टेड, और उसके अलावा हमारे पास गूगल है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, आई एम मोस्टली अज्यूमिंग ये क्वेश्चन अमूमन आता है कि सर वाई व्हाट इज़ द थिंग जो कि हमें
इस बात का डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि हम किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन हो मेरा आंसर ये होता है कि द थिंग यू हैव मोस्टली एक्सेसिबल, जो आपके पास एक्सेसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा है एज अ स्टूडेंट, आप पहले वो ऑप्ट कर लो। लाइक अगर आप एज अ स्टूडेंट हो और आपके पास यू कैन हैव एक्सेस टू लर्न IBM प्लेटफॉर्म, आपके पास लाइसेंसिंग है, आपके पास मेंटोर्स हैं जो कि आपको गाइड कर सकें, you have access to the certification program, so I go and opt any of this cloud platform for learning। ये बात होगी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक SME हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, सो यू कैन हैव अ चॉइस। दैट इज़ वही जो मैंने सेकंड स्लाइड के ऊपर बात की थी, आपका जो ऑपरेशंस हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को पसंद करते हो, लाइक योर कंपनी इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, और यू आर वर्किंग ऑन सम टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट। सो you that decision is depending on scenario to scenario, but if uh, you ask the question from my opinion, like what is my opinion in this regard, सो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक एकेडेमिया हैं या एक लार्ज एंटरप्राइज हैं, या यू आर गोइंग टू बी अ लार्ज एंटरप्राइज, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड गो फॉर द माइक्रोसॉफ्ट। इफ यू हैव अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सीक so if you are working on open source technology, then you can think about AWS। एंड फॉर द पब्लिक जनरल पर्पस के लिए, लाइक स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉमन पर्सन है हमारा, उसके लिए गूगल ऑफर अ वेरी गुड सर्विसेज रिगार्डिंग ईमेल। मोस्टली वी आर यूजिंग ईमेल, गूगल क्लाउड, गूगल फोटोज, इसके अलावा गूगल क्लासरूम, दैट इज़ अ वेरी यूनिक सर्विस बाय गूगल। बट Microsoft take a lead when we talk about the you can say the service point of view, so in the service point context, and in the leverage of the apps, the you can say जो हमारे पास एक Microsoft की तरफ से ना, जो आपको एक कहते हैं ना खुल के खेलने वाली चीज़, अगर आप उसकी बात करें, इनोवेशन की बात करें, यू वांट योर ओन इनोवेशन, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड गो फॉर द Microsoft। So I think so I cover all the things, the different the models। मेरी तरफ से तकरीबन ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा जी। यहाँ पे कुछ की बेनिफिट्स हैं क्लाउड के क्लाउड को ऑप्ट करने के। व्हाट यू हैव द बेनिफिट्स, वही बात जो हमारे स्टार्टिंग में जाफिर साहब ने भी की थी कि जो बिजनेस हैं ये स्केलेबल हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ रिगार्डिंग, अगर आप अभी यू कैन सी द जूम, अभी जो इससे पहले था एक प्लेटफॉर्म है दैट यूज़ फॉर मीटिंग। सो जूम का जो यूज़र था वो कोविड से पहले और कोविड के बाद दैट डिफरेंट। यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो पे की दी जा सकती है, जो है वो ई-कॉमर्स स्टोर, और आपको ये लगता है कि आपके ई-कॉमर्स स्टोर के अंदर लाइक इवनिंग का एक स्लॉट है, इसमें क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट ऑप्ट द क्लाउड, और उसमें ये होता है कि आपका जो आपकी कनेक्टिविटी जो कॉस्ट है या आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि जो आपका क्लाइंटेज बढ़ता जाएगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। जो स्केलेबिलिटी है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, दैट इज अ की एलिमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्टिंग एंड बेनिफिटिंग ऑफ द क्लाउड्स। सेकेंड, वी हैव स्केलेबल, मैंने आपको बता दिया है कि यू हैव नो क्लू कि किस टाइम कितना क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे, आपकी ट्रैफिक पे या आपकी ऐप को यूज़ करेगा। तो जैसे जैसे क्लाइंट की या जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे यूज़र आपका या क्लाइंट आपको जो भी नाम दे दो, वो जैसे जैसे आपकी सर्विस को एक्सेस करता जाएगा, वैसे वैसे क्लाउड विल हेल्प यू टू टू गो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्केल योर मॉडल। आई कैन लाइक यस, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल। आई थिंक सो साकिब अब्दुल्ला यहाँ पे हैं, वो ज़्यादा बेटर वे में दे एक्सप्लेन दिस टू phenomena regarding the what is the actual phenomena of the vertical and horizontal scalability। इलास्टिसिटी है, लाइबिलिटी है, आप इसके अलावा यू हैव अ वेरी you can say secure environment, आपको you don't bother about managing your data, managing your service, you just focus on the business growth, client satisfaction and other rest of operations जो होते हैं वो हैं। तो when you go and opt some certain cloud solution, so that will help you। अब हम बात करते हैं कि why I am preaching, why I am talking about this as a student, as a career progressor। अगर आप एक कैरियर के अंदर हैं और अगर आप you are लुकिंग फॉर कैरियर ग्रोथ, तो आपके लिए इसके अंदर क्या बेनिफिट है, वाई यू लर्निंग। क्योंकि पहले जो मैंने बात की है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट यू डोंट बॉदर अबाउट कॉस्ट, यू डोंट बॉदर अबाउट द स्केलेबिलिटी, यू डोंट बॉदर अबाउट द
their reliable and secure environment. As a student, I suggest go and learn the latest trend, because when you learn this thing तो कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट है. तो जब कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है कंपनी को आपकी भी रिक्वायरमेंट है. ठीक. जब आप ये चीज़ें सीख लोगे, when you learn about how to manage your service, how to build these kind of thing, so आपकी अपनी वर्थ भी बढ़ेगी एज अ प्रोफेशनल कैरियर, अगर आप अपने आप को एक कैरियर पाथ के अंदर ग्रो करता हुआ देख रहे हो आने वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 ईयर, आने वाले 1-2 सालों के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरा आई एम जस्ट टायर्ड, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ. ठीक है. बोल के होपफुली जो बातें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, यू गेट एन आइडिया. मैं एक ओवरव्यू, एक समरी बता देता हूँ कि बेसिकली माय पर्पस इज जस्ट टू सेट द ग्राउंड. मैंने बात की क्लाउड की कि यार क्लाउड है क्या. क्लाउड इज़ अ रेंटल मॉडल ऑफ ऑफरिंग कंप्यूटेशनल सर्विसेज. हमने इसके बाद बात की जी कि क्लाउड क्या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है व्हेन वी आर द हेड ऑफ अ स्टार्टअप. अगर हम स्टार्टअप की एसएमई की बात करें तो वी कैन कट अवर कैपिटल कॉस्ट. हम कैपिटल कॉस्ट को कट कर सकते हैं. वी कैन रेंटल आउट अवर दिस काइंड ऑफ मॉडल फ्रॉम एनी अदर रेप्यूटेड क्लाइंट. और हमारा जो हैसल है टू मैनेज अवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम हो जाएगा. फिर हमने कहा जी हाउ मैनी वेज टू गेट यू कैन से दोज काइंड ऑफ सर्विस. तो उसके अंदर हमने मेनली 3 जो हमारे पास मेजर वेज हैं उसको हमने बात की, जिसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, और हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है. इसके अलावा भी नेटवर्क एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एआई एज अ सर्विस भी, एनालिटिक्स के कंप्यूटिंग एज अ सर्विस भी माइक्रोसॉफ्ट अभी रिसेंटली ये भी ऑफर करता है अपने सोल्यूशन के अंदर. बेनिफिट्स की बात की हमने बहुत पर्सपेक्टिव में, एज अ स्टूडेंट अगर आप एक कैरियर ग्रोथ में हैं तब भी, और इसके अलावा अगर हम एक एसएमई हैं, आप एक स्टार्टअप हैं, या यू आर गोइंग टू बिल्ड योर स्टार्टअप, तो उसके लिए भी कोई डिस्कस अबाउट द यू कैन से बेनिफिट. यस देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके कुछ कॉन्स नहीं होते. देयर आर सम सर्टेन कंसर्न्स. तो हमारे साथ अभी अब्दुल्ला हैं जो कि वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, मेरे क्लास फेलो भी हैं और इस टाइम यूएई में सेटल्ड हैं. And thank you so much and welcome Abdullah on this you can say amazing session. Over to you. आप कंटिन्यू करो. मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि अब्दुल्ला वर्क आई थिंक सो मोर देन 6 ईयर 7 ईयर, तो एक टिके तकरीबन हो गया है. मैं जानता हूँ कि अब्दुल्ला माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और अब्दुल्ला का जो है फर्स्ट लव माइक्रोसॉफ्ट ही है. सेकंड का पता नहीं है, बट फर्स्ट लव जो है अब्दुल्ला का माइक्रोसॉफ्ट ही है. सो अब्दुल्ला वेलकम टू यू, और ओवर टू यू, और आप यहाँ से कंटिन्यू करें. लुकिंग फॉर सम अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम योर साइड. थैंक यू. Yes, Assalamualaikum. Thank you so much, you guys, Abdullah and Saqib, arranging this amazing session. And also thanks for Ahmad Jafi sir for their speech. और अब्दुल्ला, as you know, आपने क्लाउड पे काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, और आई डोंट थिंक सो कि मेरा इसमें कोई इंट्रोडक्शन बनता है, बट लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स दैट जो हमारा टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट 365. To as per Microsoft Reimagine, the way you work with Microsoft 365 and Microsoft Teams. As per the IT consultant and as per the market, अगर आप देखें तो hopefully in next couple of years, most of organization budget, approximately 35% of their budget will allocated for the IT services. So this is the best time to start the career of as IT guy, as IT engineer, and as IT consultant on Microsoft Azure cloud services or Microsoft 365. The good thing you get on any cloud provider, especially with Microsoft, is it's a cost-effective solution, और इसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है. आप इसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं, जिस तरह अब्दुल्ला ने आपको कुछ टूल्स का बताया, तो आप उनके ज़रिए पावर ऑटोमेट है एंड सो मेनी अदर टूल्स जो कि आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं. ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं. और द सेकंड थिंग कि सिक्योरिटी आपकी रिस्क पे नहीं होती. Microsoft directly support you. The best thing you get in Microsoft 365
that free of cost support for all of their products. So आप Microsoft का टिकट ओपन कर सकते हैं और आपको Microsoft free of cost support करेगा. और जो Microsoft be productive anywhere. So as with Microsoft Teams आप जो हैं वो chat calls और मीटिंग होस्ट करते हैं, जिस तरह भी साकिब ने और अब्दुल्ला ने मीटिंग होस्ट की हुई है. तो इमेजिन कि अगर ये हमें फिजिकल मीटिंग करनी पड़े तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स होंगी और जो बाकी मामला होंगे, तो ये बहुत एक इफेक्टिव वे है ऑनलाइन मीटिंग्स का. बी प्रोडक्टिव फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. और इसके अलावा जो इसकी मेन Microsoft 365 के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सर्विसेज इंक्लूड हैं, जो फर्स्ट है उसमें एक्सचेंज ऑनलाइन है, देन वी हैव शेयरपॉइंट, देन वी हैव Microsoft Teams एंड इंक्लूडिंग शेयरपॉइंट वन ड्राइव. और इसी तरह हमारे पास बाकी सर्विसेज हैं. ये मेन हमारे पास जो सर्विसेज हैं 365 में. Then top of that, secure your business. Security is nowadays very challenging part. अगर आप एक अपने पास एक लोकल सर्वर, शेयर्ड सर्वर या ईमेल सर्वर लगाते हैं तो उसको सिक्योर करना इज वेरी टफ. अगर आप एक SMB है, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इजीली इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं विद Office 365 एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन. और आप सेव अपनी मनी कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू मैनेज द सर्वर अप टाइम and lot of other things. You don't need to take care of patches and all of the things. Microsoft will take care of these things. अब एक फॉर एग्जांपल एक्सचेंज है हमारे पास, शेयरपॉइंट है, Microsoft टीम है, एंड फिर ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. तो ये आपको एक Microsoft 365 के बेसिक प्लान में ये चीज़ें मिल जाती हैं. और आप इसको क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं. बिल्ड फॉर टीम वर्क प्रोडक्टिविटी नाउ डेज इज़ वेरी कोर फॉर एनी बिजनेस. अगर आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर वो रिमोट वर्क भी कर रहे हैं, तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन और आपस में इंटरेक्शन नहीं है तो वो प्रोडक्टिविटी लूज करेगा. इंटीग्रेट है वेरी सिंपली. और दूसरा सिक्योरिटी, टॉप ऑफ द लाइन सिक्योरिटी है. हेल्प सिक्योर योर डिवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट. माइक्रोसॉफ्ट इसमें आपको MFA देता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. जो रिस्क आपका सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी में जो ड्रॉबैक होता है वो आपकी आइडेंटिटी कंप्रोमाइज होती है. और अगर आप MFA इम्प्लीमेंट कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो अप्रोक्सीमेटली आप 60% आप सिक्योर हो जाती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज होने से. और ये एक बहुत अच्छा आपके पास सोल्यूशन है Microsoft 365. और एक अगर आपने जस्ट स्टार्टेड SMB या स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया और आप इसको इम्प्लीमेंट करें इस ऑर्गेनाइजेशन में, या इवन फॉर SMB, you can name the organization that are using the Microsoft Teams. Enterprise even Accenture है, बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं जिनके thousands में एम्प्लॉइज हैं, and they are using Microsoft Team for their productivity, increase their productivity, and same Exchange Online and other products to improve their process. क्योंकि as a IT guy कंपनी को चाहिए कि वो फोकस करे कि उसने प्रोडक्टिव कैसे होना है, रेदर देन कि जी अब टाइम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं. सो कंपनी को जो कोर फोकस है उस पर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसका फोकस है मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, तो सैमसंग का कोर फोकस ये होना चाहिए उसके वो फोकस करे कि मैन्युफैक्चर किस तरह उससे करने हैं मोबाइल्स और किस तरह इंप्रूव करनी है अपनी चीज़ों को, रेदर देन कि वो फोकस करें कि भाई हमारे सर्वर्स तो डाउन नहीं होगी, हमारी सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. तो दैट्स वाई Office 365 माइक्रोसॉफ्ट जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है उसकी कोर एक्सपर्टीज इस चीज़ में, एंड यू विल पीस ऑफ माइंड. आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं. और ये मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं पोर्टफोलियो, जिसमें विंडोज़ है, एजर सिक्योरिटी सेंटर है, एंड आप यू कैन नेम ईच प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है फॉर द सेक ऑफ IT सर्विसेज. तो आप इस तरह अपनी जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में IT है उसको आप इजीली और पीसफुली मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी हसल. तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था Microsoft 365 का. होपफुली आपने कुछ अंडरस्टैंड किया होगा. और मैं यानी एनी न्यू बिगनर्स को या स्टूडेंट जो हैं या इवन जो प्रोफेशनल है उनको रिकमेंड करूँगा कि वो Microsoft 365 पे वर्क करें, इसको लर्न करें, और फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर रही हैं और ये मार्केट ट्रेंड बन चुका है. और आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल है, इवन फॉर 2 पीपल्स टिल
2,000 people. It will help you to secure your environment. And thank you so much for joining this session. And now move forward to our champion, Saqib. They can continue the session. Thank you so much. I think so. Thank you so much, Abdullah. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच दोस्तों का। एक मिनट। सॉरी, थोड़ा सा तकनीक का डिले है। सो पार्टिसिपेंट स्टे ट्यून विद मी। मीनवाइल साकिब जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो स्पीकर हैं वो साकिब हैं। आई थिंक जो साकिब ने कैम को अपना ऑन कर लिया है, बट साकिब काइंडली अगर आप अपना माइक भी अनम्यूट करिएगा और गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, हमारे जाफरी साहब का, अब्दुल्ला कमर का और अब्दुल्ला अल्ताफ साहब का, कि इन सब ने शॉर्ट नोटिस पे इस वेबिनार को अटेंड किया और हिस्सा बने। हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इस छोटी सी एफर्ट का हिस्सा बने। तो मैं आता हूँ अपने तारुफ के ऊपर और बताना चाहूँगा कि मेरा नाम साकिब मोहम्मद है और मैं MCT हूँ और पिछले 6 साल से मल्टीनेशनल के अंदर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब भी कर रहा हूँ और इस हवाले से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, जो अजोर और ऑफिस 365 की ट्रेनिंग भी पिछले कुछ अर्से से जाना इस्लामाबाद के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 जॉब रोल्स के हवाले से, कि इस वक्त जिस तरह से इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, तो इसने अपनी जगह भी बनाना शुरू कर दिया है इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन्हें हम जॉब रोल्स कहते हैं या जना टैग्स कहते हैं, जॉब टाइटल्स कहते हैं, उस तरह के मुख्तलिफ हम टास्क कहते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त करंटली माइक्रोसॉफ्ट की कौन कौन सी सर्टिफिकेशन ऐसी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और उसको जो है ना हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले है मैं इस लिंक पे जाता हूँ। अगर सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो वो इस बार कोड से स्क्रीन पे भी जा सकते हैं और इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके मैं चैट पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और मैं इसको जो है ना इस लिंक पे जाके शेयर कर ओपन करता हूँ ताकि हम इसका व्यू थोड़ा बेटर ले सकें और मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल बता सकूं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पोस्टर है ये मार्च 2022 को अपडेट हुआ है। सबसे पहले तो इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसको वक्तन फवक्तन अपडेट करता है। अभी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की 4 मेजर डोमेन्स हैं जिनके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 1 अजोर, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसका पुराना नाम ऑफिस 365 था, थर्ड डायनामिक्स 365 एंड फोर्थ पावर प्लेटफॉर्म। एक और भी नई अपकमिंग और ग्रोइंग फील्ड है जिसे सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी कहा गया है, वो इस वक्त ग्रोइंग है। इसकी बहुत सारी सर्टिफिकेशन ऊपर मौजूद आपके जो ब्रांड हैं या जॉब रोल्स हैं उनका हिस्सा है। तो बेसिकली इन 4 स्पेसिफिक जॉब फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन फिल वक्त ऑफर कर रहा है। इससे पहले जो मौजूद थी MCSE, MCITP, सारी माइक्रोसॉफ्ट ने इस वक्त एक्सपायर कर दी है, रिटायर्ड कर दी हैं और उसकी जगह पर ये मौजूदा सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहा है जो प्रोफेशनल्स इसको कर सकते हैं और उसको जो है ना अपने कैरियर को आगे लेके चल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। तो आज का हमारा सेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 की आपको कुछ यहाँ पर डोमेन नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो सर्टिफिकेशन नजर आ रही हैं वो रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन हैं जिनमें MS600, MS203, MD100, MD101, MS500 और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन हैं जिनके साथ नाम
वाज़िया लिखे हैं, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या जाना रोल है इन सब का। सबको तो मैं डिस्कस नहीं कर सकूंगा, लेकिन मेजर सर्टिफिकेशंस को डिस्कस करूंगा। सेकंड नंबर पर आती है स्पेशलिटी। ये स्पेशलिटी जो बहुत ही इंटरप्राइज के अंदर काम करते हैं या जिनका एक्सपर्ट मोर देन 5 इयर्स हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उनके लिए ये एक सर्टिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इन सर्टिफिकेशंस की प्री रिक्विजिट्स भी हैं और वो प्री रिक्विजिट ऊपर मौजूद रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन में हैं जो कोई भी प्रोफेशनल करके इनको अचीव कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली ना तो इनको कोई अंडरस्टैंड कर सकता है और ना ही कोई इनको जो है एलिजिबल हो सकता है इनको पास करने के लिए। और इसके नीचे फंडामेंटल्स है जो बिगनर लेवल की सर्टिफिकेशन कहलाती है, जो इन स्पेसिफिक रोल्स में इन करने के लिए ज़रूरी है। 1 मिनट अगर हम 5 मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे चलते हैं और मेरी अगर स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है तो इसके अंदर मैं आपको फंडामेंटल सीरीज शो करवा रहा हूँ। इस फंडामेंटल सीरीज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अजूर के 3 फंडामेंटल्स मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक फंडामेंटल है, डायनामिक्स के 2 हैं, पावर प्लेटफॉर्म के 1 है। अब फंडामेंटल क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आप इस कोर्स को सिलेक्ट करके किसी भी स्पेसिफिक रोल में, माइक्रोसॉफ्ट की जो रोल्स हैं, रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन, इनमें इंटर हो सकते हो और फिर उसके ऊपर आप मज़ीद एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। ये सर्टिफिकेशन उन लोगों के लिए जो नए नए इस फील्ड के अंदर या नए नए इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जंप इन होना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उनको बेसिक फंडामेंटल इसके अंदर बताए जाएंगे और जाना एक बेहतर और अच्छी चीज़ उसकी बेसिक के ऊपर डेवलप होगी। तो यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है। इन कोर्स को आप याद रख सकते हैं, आप गूगल भी करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हो। 4th वन सबसे लास्ट पे, अभी माइक्रोसॉफ्ट की जो ग्रोइंग फील्ड का जो पाथ ट्रैक है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसे SC भी कहा जाता है। इसके अंदर भी फंडामेंटल की एक सर्टिफिकेशन है और रोल बेस के अंदर इसकी एक अजूर सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट जो AZ
वाले ट्रैक के अंदर भी आती है, AZ500 जो ऊपर जो है ना Azure सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट के नाम से ऊपर भी मौजूद है, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट जो यहाँ पर भी आपको नजर आएगी 500 के नाम से सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। तो इन सर्टिफिकेशंस को लेके आप अपनी सिक्योरिटी वाली फील्ड को एम्पावर कर सकते हैं और इसको लेके भी चल सकते हैं। तो इस फील्ड को दिखाना या इसको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इन कोर्स को माइक्रोसॉफ्ट के इस URL के जरिए देख सकते हो, एक्टिव सर्टिफिकेशंस को, और अपने पाथ को डिफाइन कर सकते हो एज अ प्रैक्टिकली भी और एज अ सर्टिफिकेशन प्रोफाइल के हवाले से भी। चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलूंगा। तो अब सबसे पहला सवाल कि आपको कोई भी सर्टिफिकेशन अडॉप्ट करने के लिए या किसी भी सर्टिफिकेशन को अपनी प्रोफाइल का हिस्सा बनाने के लिए उसको साबित करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर जो प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जो भी आप टैग करते हो या जो भी आप सर्टिफिकेशन करते हो उसको साबित करना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने वो सर्टिफिकेशन सिर्फ पढ़ी है या उसका हक भी अदा कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत मैंने जो रिसर्च किया है उसमें मुझे ये मिला है कि आप फंडामेंटल सर्टिफिकेशन को कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अपनी प्रोफाइल का हिस्सा बना सकते हो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये आपको वो नॉलेज भी देगी जो बेसिक लेवल का है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हो, जंप इन कर सकते हो किसी स्पेसिफिक जॉब रोल के अंदर और उसको आगे लेके अपना पार्ट बना सकते हो। तो इसके लिए किसी तरह से कोई भी रिक्वायरमेंट का होना या बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जिसे एसोसिएट कहते हैं। अब मैं अगर पिछली स्लाइड पे जाऊं या मैं पेज पे लेके जाऊं तो यहाँ पर बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशन जिनके साथ एसोसिएट लिखा है और कुछ सर्टिफिकेशन ऐसी हैं जिनके साथ एंटरप्राइज एक्सपर्ट लिखा है। तो एसोसिएट एक अलग लेवल है, एक्सपर्ट एक अलग लेवल है। एसोसिएट आपको वो नॉलेज या वो टैग देगा जो 2 से 5 ईयर के नॉलेज को प्रूव करेगा कि इसके पास आईटी या स्पेसिफिक रोल्स के ऊपर या स्पेसिफिक जो फील्ड के ऊपर इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और ये इसके ऊपर एसोसिएट लेवल का काम कर सकता है और उसको आगे लेके चल सकता है। फिर इसके बाद एक्सपर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो एक्सपर्ट लेवल आपको वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन या हैंड्स ऑन या जो भी प्रैक्टिस सिखाएगा जो 5 या उससे ऑनवर्ड एक्सपीरियंस जो लेके चलने वाला है उसके ऊपर लेके चलेगा। तो इन चीजों को समझना है कि अगर आप इस प्रोफाइल को इन टैग्स को अपनी प्रोफाइल का ऐसा बनाते हो तो उससे तरह का एक्सपीरियंस भी गेन करना है। अब एक छोटी सी मिसाल है, मेरे उस्ताद अक्सर जिक्र करते थे, उनकी मैं यहाँ पर एक कोट करूंगा उस मिसाल को कि वो कहा करते थे कि एक्सपीरियंस इस चीज का नाम नहीं है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी गवर्नमेंट या सरकारी इदारे के अंदर आप वक्त गुजारो। एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में या किसी भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कितना वक्त सर्व करते हो, चाहे वो वक्त क्लास में है, घर में है, ऑफिस में है, यूनिवर्सिटी में है, कहीं पर भी है, वो आपका एक्सपीरियंस कहलाता है। तो इस एक्सपीरियंस को सिर्फ टाइम के हवाले से नहीं काउंट करना, आपने किसी भी स्पेसिफिक फील्ड या प्रोजेक्ट के ऊपर या रोल के ऊपर या फील्ड जो है ना डोमेन के ऊपर कितना वक्त लगाया है उससे इसको काउंट करना है और आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो इस चीज़ को जो है ना समझना एक अच्छी। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब हर ऑफिस 365 के अंदर एक सर्टिफिकेशन ऐसी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्टिफाइड, जिसे एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर 2 एग्जाम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 आइडेंटिटी एंड सॉल्यूशन एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जिसे MS100 एंड MS101 भी कहा जाता है। अगर मैं इसको दूसरे चार्ट में दिखाऊं तो ये वो सर्टिफिकेशन, ये सबसे लास्ट में जिसके साथ स्टेरिक लगा है,
ठीक है ना। ये एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट है जिसके अंदर 2 सर्टिफिकेशन आती हैं। ये वाहिद सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 की एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर आती है। इसको डायरेक्टली अचीव नहीं किया जा सकता एज अ सर्टिफिकेशन भी, इसको मैं अचीव नहीं कर सकता, और एज अ प्रोफेशनल भी मैं इसको या इसके ऊपर जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसको मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता अनलेस जब तक मैं इसका प्री रेक्विजिट कंप्लीट नहीं करूँगा। तो इसके 4 प्री रेक्विजिट हैं, 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनको एज अ प्री रेक्विजिट के तौर पर आप लेके चल सकते हो और उसको आगे आप जाना हासिल करने के बाद इस फील्ड के या इस एक्सपर्ट लेवल पर जा सकते हो। जिसमें सबसे पहली चीज है मॉडर्न डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। मॉडर्न डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, इसका कोड MD100 और MD101 है। ये सर्टिफिकेशन आपको नॉलेज देती है विंडोज 10 की सर्विसेज के ऊपर, और इसके जरिए हम किस तरह से एक ऑफिस के डेस्कटॉप्स को, लैपटॉप्स को जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यूज करते हैं या 11 यूज करते हैं, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान इस होपफुली मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। और मैं ये कह रहा था कि सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आप आगे चल सकते हो जी। हेलो, हाँ जी ये एक वन मिनट पर आपकी बात समझ नहीं आई, बट आप अनम्यूट करके दोबारा बोलिए। You can use the chat. Kindly, if you have any question, you can use chat. Kindly just send the message on chat. बस एक मिनट मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो पहली ऑप्शन आपकी ये हो सकती है जिसको आप यूज करते हुए अपने करियर को एसोसिएट लेवल से स्टार्ट करके एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन पे अगर मैं जाऊं तो सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट की। इसका है MS 500। ये भी एक ऑप्शन के तौर पर आप यूज कर सकते हो, और इससे आप जो ना चल के अपना पाथ शुरू करके एक्सपर्ट लेवल पर जा सकते हो। थर्ड ऑप्शन के ऊपर मैं अगर मैं जाऊं तो मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है। अब्दुल्ला अल्ताफ साहब ने बड़ा जिक्र किया एक्सचेंज ऑनलाइन का। एक्सचेंज ऑनलाइन क्यों बार बार हमें सुनने को मिलता है, या ईमेलिंग सॉल्यूशन क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि ईमेल एक हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है फॉर डाटा कलेक्शन, फॉर एविडेंस, फॉर ट्रैकिंग, फॉर हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त जरूरत बन चुका है ईमेलिंग सिस्टम कि वो जो है कोई और माइक्रोसॉफ्ट के पास 2 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो फख्र करता है, एक एक्टिव डायरेक्टरी और दूसरी एक्सचेंज, जिसे हम ईमेलिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इसकी सर्टिफिकेशन या इसके जरिए भी आप इन हो सकते हो और एक्सपर्ट लेवल पे जाकर इसको आगे लेके चल सकते हो। तो यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है टीम एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। टीम एडमिनिस्ट्रेटर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, जिसके अंदर आपको टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस है, एंटरप्राइज है, NGO है, ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे सोल्यूशन अडॉप्ट करके दिया जा सकता है, कैसे लोगों को राइट्स दिए जा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट को इन्विटेशन दिए जा सकते हैं। मैं और आप इस वक्त जो मीडियम भी यूज कर रहे हैं वो भी टीम्स है। इसकी बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, कैसे जो है ना चैनल्स बनते हैं, मीटिंग्स बनती हैं, स्केड्यूल्स बनते हैं, कॉन्टेक्ट्स लाए जाते हैं, शेयर्स किए जाते हैं, और ये सारी चीजें टीम्स के ऊपर किया है। इसके हवाले से भी ये कोर्स डिजाइन है जिसके जरिए हम ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर एसोसिएट लेवल अचीव करने के बाद इन हो सकते हैं। और फिफ्थ वन आपका है
आइडेंटिटी एंड एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, ये है MS सीरीज, SC सीरीज है, जिसे हम सिक्योरिटी सीरीज भी कहते हैं, जो अलग से मैंने आपको दिखाई भी थी। इसको यूज करते हुए जो हम एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन हासिल करके इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 ऑप्शंस हैं जो ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा यूजफुल हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। अगर पांचों भी करके आगे चला जाए तब भी कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट लेवल पर जाने की ये है कि आप किसी एक को अडॉप्ट करने के बाद अगली एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन को अचीव कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इस वक्त पॉपुलर, सबसे पॉपुलर ट्रैक है वो कौन सा है और वो कहां पर किस तरह आपको फायदा दे सकता है। इस वक्त 3 ट्रैक ऐसे हैं जो एसोसिएट लेवल के हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, वो इस वक्त अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। चौथा भी है, लेकिन 3 ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पहली है, फिर मैसेजिंग है, फिर मॉडर्न डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वर्कलोड एडमिनिस्ट्रेटर है। इन चारों को, ठीक है ना, ज्यादा फोकस के तौर पर इस वक्त यूज किया जा रहा है। अगर रीजन वाइज हम देखें तो यही चारों सर्टिफिकेशन इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जाना लोग सर्टिफाइड होकर और इनको अपनी प्रोफाइल का हिस्सा बना रहे हैं। तो जाना इनमें से किसी एक के ऊपर अगर आपकी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो इसको आप शुरू कर सकते हैं और उस बात को डिफाइन कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं रिलेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट 365, और फिर उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पर जा सकते हो, जो एक ही है, जिसे एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। आखिर में, सबसे आखिर में, सब आप लोगों के लिए, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और एक अनाउंसमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब हमारा इंशाल्लाह 28 ऑफ मार्च को एक बैच अनाउंस हो रहा है, जिसके ऊपर हम 3 कोर्सेज पढ़ाएंगे। प्राइस एक कोर्स की है, उस एक प्राइस के अंदर हम तीनों कोर्सेज को कवर करेंगे, जिसमें फंडामेंटल भी है और एसोसिएट लेवल है, जिसमें मॉडर्न डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, और तीसरा एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट है। ये 5 पेपर के नॉलेज 2 से 2.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, और इसके एवज एक कोर्स की फीस आपसे ली जाएगी। जो लोग इसमें जाना चाहते हैं वो इस लिंक आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू भी, चैट में भी शेयर कर देंगे, और उसमें रजिस्ट्रेशन करें और जल्द से जल्द इसको अचीव करें। और थैंक यू सो मच अगेन। सबसे पहले तो हमारे हरदिल अजीज हमारे जाफिर साहब का, कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, फिर अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला कमर साहब, अब्दुल्ला अल्ताफ साहब, और आप सबका ऑडियंस का जिन्होंने शामिल हुए। मैं इधर ही हूँ, अब्दुल्ला के हैंड ओवर करता हूँ होस्टिंग, और अगर किसी के कोई सवाल है वो मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकता है और किसी भी ट्रेनर से पूछ सकता है। तो थैंक यू सो मच। जी अब्दुल्ला साहब। ज़कीर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। और उम्मीद है आप सब लोग थके हुए नहीं होंगे और आप लोगों ने चाय शाय पी होगी, साथ साथ बातें भी सुनी होंगी, और साकिब ने बड़ा अच्छा और बड़ा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट जो ट्रैक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस के, वो किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रैक के थ्रू यू कैन गेट द प्रोफेशनल लेवल। वाई वी आर फोकसिंग ऑन द सर्टिफिकेशन, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इस टाइम देयर इज़ अ वेरी बिग, यू कैन से, डिबेट ऑन स्किल वर्सेस यू कैन से डिग्री। एज यू नो, इफ यू नो मी, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो उनके लिए आई proudly say that I am part of academic background as well. Currently I am working with an you can say a private university इस्लामाबाद के साथ में भी काम कर रहा हूँ। तो उसमें ये देखा जाता है कि अभी जो हम बात करते हैं, मैं बात करूँ गूगल की या मेनली गूगल और फेसबुक की, जो बड़े इंटरप्राइज हैं IBM की, तो जितने भी बड़े इंटरप्राइज हैं दे जस्ट कमिट द
you can say use the requirement of the degree. तो डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने सबमिट कर दिया, लाइक यू डोंट नीड डिग्री टू अप्लाई. फिर जो IT है, द ब्यूटी ऑफ दिस यू कैन से टेक्नोलॉजी इज यू कैन लर्न विद एनी बैकग्राउंड. आपका कोई भी बैकग्राउंड है तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज यू कैन से एनी लैंग्वेज. अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं तो टीचर्स के लिए 365 इज़ अ वेरी यू कैन से वेरी प्रोग्रेसिव थिंग. अगर आप एज एन एकेडमिक उसको पार्ट करते हो, उसमें ब्लेंडेड लर्निंग की बात सर ने की है, सो विदाउट क्लाउड यू आर अनेबल टू गो फॉर ब्लेंडेड लर्निंग. ये जो कोर्स है दैट इज़ अ फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक. आप इसको अटेंड करो, देन यू कैन गो एंड एडवांस ऑन द टीम्स एंड अदर जो टीचिंग से रिलेटेड टूल्स हैं. सेम गोज अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं, सो दैट इज़ फॉर यू एज वेल. सो अगर इन शॉर्ट अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, लाइक यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टार्टअप और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो तीनों लोगों के लिए डिफरेंट यू कैन से करियर प्रोग्रेसिंग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं व्हेन यू अचीव दो सर्टिफिकेशंस. मी माई सेल्फ और माई फेलोज वी आर ट्राई टू कवर ऑल द कंटेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर है अवेलेबल. एक और आपको बात पता चलूँ, मैंने अपना नंबर मेंशन किया है चैट के अंदर. यू जस्ट सेंड मी पिंग मी विद द रेफरेंस ऑफ दिस वेबिनार. Your first come first serve. I just registered you. You don't need to pay any fee. Just confirm your availability कि आप जो है वो participate कर रहे हो. Then what can do, attend the sessions. Session attend करें when you feel comfortable. Then you are you can say okay, आपको email दोबारा आ जाएगा. अभी मैं किसी ने एग्जाम में कहा कि आपका email नहीं कर रहा. I send you my number. आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर लो एग्जाम. और आपको भी फॉर्म का जो लिंक है वो सब कुछ कॉपी कर रहे हैं कि आपको वो फॉर्म का लिंक भी मिल जाता है. सो द फोकस इज टू अपलिफ्ट द क्लाउड नॉलेज. आप लोगों तक पहुँचाई जाए, ठीक है. वर्क ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स पे काम करेंगे. मेरी सजेशन है आप लोगों को. बाकी अगर आपके क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह ये जो सेशन आज हमने करवाया है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम ये सेशन दोबारा इन पर्सन करवाएं. जो लोग पंडित इस्लामाबाद में होंगे, आई रिकमेंड यू माई ग्रेट प्लेयर कि अगर आप लोग उसको ज्वाइन करो, आप जस्ट यू कैन सेंड मी और आप फ्री अपनी सीट भी रिजर्व कर सकते हैं. अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर इफ़ यू वांट टू कंडक्ट दिस सेशन इन योर स्कूल कॉलेज, सो उसके लिए भी वी आर अवेलेबल अपकमिंग इंशाल्लाह फ्रॉम द स्किल शेयर हब की प्लेटफॉर्म से और CIT के प्लेटफॉर्म से. जो लोग टफ़ी साहब के रेफरेंस से भी आए हैं या जो मुझे टफ़ी जानते हैं, आप लोग इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हैं वो आई ट्राई मेरा बेस्ट जो क्लास ट्रेनर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनर हैं और जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, उन तक जो है ना उनसे नॉलेज लेके आप तक पहुँचाई जाए. कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि रिमोट एरिया से भी हैं. मेरी व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई थी कुछ दोस्तों से, तो हम उनके लिए भी यस आई हैव अ प्लान के आने वाले टाइम के अंदर हम हाइब्रिड मोड के अंदर भी ये सेशंस को जो है वो कंडक्ट करें. हाइब्रिड मोड से पर्पस या हाइब्रिड मोड से मुराद मेरी ये होगी कि like trainer is present at you can say इस्लामाबाद और लाइक अब्दुल्ला जो है वो भी यही से बात कर रहे थे. तो जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं वो फेस टू फेस या पर्सनल लेवल के ऊपर हाइब्रिड मोड के अंदर यस वी कैन अवेलेबल एंड गिव द सर्विस फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ एज वेल. सो अगर मैं बात करता चाहूँ तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरी सजेशन ये होगी या मेरी ख्वाहिश ये होगी, दिली तमन्ना ये है कि अगर आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और आप मेरे से अगर पर्सनली कुछ क्वेश्चन करना चाहें, क्यूरी करना चाहें, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद थिंग कि आप कौन सा पाथ चूज करें, अगर आप यू आर जंगलिंग विद योर स्टफ, सो यू कैन डिस्कस विद मी एज वेल. आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. मैंने अपना नंबर भी चैट के अंदर मेंशन कर दिया है. थैंक यू सो मच अगेन फॉर स्पेंडिंग टाइम लिसनिंग अस. hope for the best, hope for you can say पाकिस्तान टेक कम्युनिटी और पाकिस्तान की जो हमारी जो ग्रोथ है IT इंशाल्लाह फुल ट्राई लेवल बेस्ट करें. इसके अंदर एक अच्छा अपना रोल अपने आप को भी अपलिफ्ट करें और अपने आप के साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी अपलिफ्ट करें और उनको भी टेक्नोलॉजी इनेबल करने में हम अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन करें. तो थैंक यू सो मच अगेन. यहाँ पे मैं अपना जो वेबिनार है सो क्लोज करता हूँ. आई एम अवेलेबल देयर और अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं. Thank you so much again. Jazakallah.
सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। और ये वेबिनार काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरा बैकग्राउंड वैसे इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन काफ़ी अच्छा वेबिनार था। और मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपका थोड़ा वॉइस का सा मसला था, तो क्या ये जो आप रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये जो अभी आप कोर्सेज करवाएंगे ये ऑनलाइन होंगे या फेस टू फेस यानी फिजिकली कंडक्ट होंगे? आपका नाम क्या है ब्रदर? सॉरी मैं आपका नाम नहीं सुन सका। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तैयब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं फ़िलहाल तो जामशोरो मेहरान यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। तैयब, क्या थे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मेरी बिल्कुल कोशिश होगी कि जो ऐसे रिमोट एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये वेबिनार लाइव करें। जैसे अब आप जाम शोर से हो तो आपके पास मेरा नंबर आ गया होगा, हम पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अकेले हो तो उसका एक पैटर्न ये हो सकता है कि मैं आपको पर्सनली टाइम दे दूं, ठीक है। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो, गाइडेंस लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको इंडिविजुअली टाइम दे दूं। और अगर आप कहते हैं कि सर आई वांट टू पार्ट ऑफ सम ट्रेनिंग, तो वो यस, मेरा प्लान है कि मैं जो मेरी ऑन गोइंग ट्रेनिंग है उनको हाइब्रिड मोड में लेके आया जाए। सेकंड ये हो सकता है कि हम आपके लिए एक स्पेसिफिकली हाइब्रिड ट्रेनिंग अरेंज की जा सकती है। लाइक आप कहते हैं जी मुझे जो है माइक्रोसॉफ्ट की, एज़्योर की, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो अब आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या क्लाउड में क्या है, वो IoT है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इसके ऊपर आते हो तो यू कैन वर्क ऑन द IoT सॉल्यूशंस, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आप उन सॉल्यूशंस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के काम कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल के अंदर व्हेन पावर मीटरिंग की बात होती है, तो अगर आप इसको नेट पे जाके सर्च करो कि माइक्रोसॉफ्ट IoT के अंदर क्या कर रहा है, आपने ये वर्ड सुना होगा IoT का, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट उसमें कर रहा है। तो आपका, आपकी अपनी इंटेंट क्या है, आप क्या चीज़ सीखना चाह रहे हो? तो यस, नंबर 1, आप मेरी इस क्लास को रिमोटली ज्वाइन कर सकते हो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं। नंबर 2, आपके लिए स्पेसिफिकली क्लास अरेंज की जा सकती है। नंबर 3, जो हमारे कुछ ट्रेनिंग रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं आपसे वो भी शेयर की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तीनों वेज हैं जिसके थ्रू आप ये अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो, अपने आप को कर सकते हो। तो मेरी कोशिश ये होगी, बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि आप ज्वाइन करो, सीखो, और सीखने के बाद ये जो हमसे सीखो ये आप वहाँ पे पढ़ाओ। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो आई विल प्रोवाइड यू, जाफरी साहब के साथ इंटरेक्ट करने का और CIT के प्लेटफॉर्म। और मेरा बेसिक जो हमारा पर्पस था वो यही है कि यार जो नॉलेज अवेलेबल है यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, इस नॉलेज को जो ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं वो भी टैलेंटेड हैं, उनके पास भी वो स्किल सेट है, उनको एम्पावर किया जाए। जो वहाँ की फीमेल्स है उनको पावर किया जाए। और आप ग्लोबली यू कैन डू द फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर भी क्लाउड का 365 की सर्विस अवेलेबल है। अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग करता है, यू जस्ट गो और आप सर्च करो, आपको बहुत सारी सर्विस मिलेंगी जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट्स के तौर पे आप लोगों के डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को मैनेज करोगे रिमोटली। तो बिल्कुल आई एम अवेलेबल, नंबर आपके पास है, तो इंशाल्लाह हमें वेबिनार के बाद ना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, दिस लुक्स अमेजिंग। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, पार्टिसिपेंट्स में से किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई अपना आपको सजेशन देना चाहो, अगर आप चाहते हो कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अपग्रेडेशन, ठीक है। सेशन सारे प्रैक्टिकल होंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें कि इफ़ यू गेट दिस ट्रेनिंग, सो ऑन द यू कैन से असेसमेंट्स बेस के ऊपर आई विल प्रोवाइड यू एक्सट्रीम लैब, यू कैन से वाउचर। जो एक्सट्रीम लैब, अगर आपको आइडिया है, ये एक ऑनलाइन लैब इन्वायरमेंट होता है जिसमें फॉर एग्जांपल होता है क्या है ना कि अमूमन क्वेश्चन करते हैं बच्चे के साथ, मेरे पास तो को टू ड्यू है तो मैं क्लाउड पे कैसे काम करूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड। आपको क्लाउड पे काम करने के लिए यू डोंट नीड अ वेरी हाई टेक लैपटॉप, ठीक। अगर आपके पास एक बेसिक लैपटॉप है विद 4 GB रैम, विद 500 GB हार्ड डिस्क, सो आप वेरी इजीली यूजिंग योर ब्राउजर, मतलब एक ऐसा लैपटॉप जिसमें ब्राउजर चलता हो, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रोम बुक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्रोम बुक चल रहा हो, क्योंकि मोबाइल का मैं इसलिए नहीं कहता कि उसकी स्क्रीन का प्रॉब्लम आपको होगा, बट यू कैन यूज ऑन मोबाइल एज वेल। सो क्रोम के थ्रू यू कैन यूज एक्सट्रीम लैब। आप इसको गूगल करिएगा, आपको एक्सट्रीम लैब का वाउचर मिलेगा। सेकंड, इफ यू आर विलिंग, और अगर आप में स्पार्क है एंड यू वांट टू गेट सर्टिफिकेशन, सो यस, आई कमेंट ऑन इट कि मैं आप लोगों को गिव यू द फ्री वाउचर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर असेसमेंट, कि कितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हो, कितना एक्टिवली आप लैब्स को परफॉर्म करते हो। ऑन बेसिस ऑफ दोज थिंग वी आर ऑफरिंग यू आई थिंक सो 10 वाउचर्स इस क्लास के अंदर, और जो है ना 10 वाउचर फॉर द एक्सट्रीम लैब एज वेल।
दोनों के हमारे पास 10 वाउचर्स होंगे. क्वेश्चन अगर आपका है सो यू कैन डिस्कस विद मी. बाकी थैंक यू सो मच ऑल. हम अपने सेशन को मैं अगले 2-3 मिनट में क्लोज कर दूंगा. होपफुली आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आप कुछ कहना चाहो तो यस, फ्लोर इज टू यू. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक. Or if you want to leave the session, you may leave the session as well. Thank you so much for joining and stay tuned with Skillshare Hub. हमारा Facebook पेज और जो Instagram है, अगर आप लोगों ने रजिस्टर किया है तो आप लोगों को ईमेल्स मिल जाएंगी. ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, और मैंने I'll share this link, और आपको उसके अंदर you can get the slides as well. मैं साकिब से कहूँगा, साकिब आप अपना ईमेल आईडी या जो है वो भी शेयर कर दें, तो यू जस्ट शूट ईमेल और आपको उसके ईमेल के रिस्पांस पे भी चीज़ें मिल जाएंगी. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया आपने रैंडम, क्योंकि देयर इज़ अ रजिस्ट्रेशन लिंक जिसमें आपको मेल जाती थी. कुछ लोगों को टीम्स का प्रॉब्लम था. नेक्स्ट इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर भी कुछ सेशंस जो है वो लेके आए. सो दैट इज़ आई एम साइनिंग ऑफ. सो अगर क्वेश्चन है तो मैं दोबारा आ जाऊँगा, अदरवाइज यू मे लीव. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.